Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is effects and control of soil pollution. तो जैसा कि आपको याद होगा कि in the previous time we have discussed regarding what is soil pollution and what are its types and how it is caused. तो आज हम बात करेंगे कि इफ़ेक्ट्स ऑफ द इफ़ेक्ट्स एंड कंट्रोल। जैसे कि आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम कि सॉइल पोल्यूशन इज़ एन अनडिज़ायरेबल चेंज, it is an unfavorable alteration in physical, chemical, and biological properties of the soil due to addition or the removal of the substances, thereby leading to the reduction in the soil productivity. This causing the undesirable change in the groundwater as well. तो इस तरह हमने ये लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, इसके टाइप्स भी मैंने आपको बताया था। मतलब इसके टाइप्स के बारे में भी हमने बात की थी, जैसे कि नेगेटिव पोल्यूशन के बारे में बताया था, पॉजिटिव पोल्यूशन के बारे में, थर्ड पोल्यूशन, थर्ड पॉइजन, ये चीज़ें हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किए थे। तो इसके अलावा मैंने इसके काजेस के मतलब बारे में भी हमने बात की थी उस दिन। तो let us try to understand today the effects and control of the soil pollution. What are the various effects which are caused by the soil pollution? So there are several effects. There are so many effects which are caused by the soil degradation or the soil pollution. तो why some of them are as under. तो पहला इसका जो effect है, that is loss of fertility of soil. Loss of fertility. देखो, जब सॉइल पोल्यूशन होता है इससे क्या होता है कि सॉइल की जो फर्टिलिटी होता है वो कम हो जाती है, and as a result of this loss of fertility of the soil, it leads to the reduction in the productivity of the soil, which ultimately causes the shortage of the food. So this is one of its causes. तो दूसरा इसका जो cause है, that is it may cause water pollution as well. वो soil pollution is also responsible for causing the water pollution indirectly. Like if we will talk about the soil erosion की जब हम बात करते हैं, and during the time these eroded soil particles, they are just carried away by the surface runoff to the nearby water bodies, and जब ये water bodies में चला जाता है, there these soil particles, they cause the silting of these water bodies, turbidity of the water body, clogging of the water bodies, and as a result of this the aquatic life जो होते हैं that gets disturbed or that gets killed, that gets died. तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि जो सॉइल पोल्यूशन है, जो ये इरोडेड सॉइल पार्टिकल्स हैं, ये भी वाटर को पोल्यूट करते हैं जब यहाँ पे अपनी पैसेज थ्रू रनिंग वाटर, थ्रू सरफेस रन ऑफ, तो उस तरीके से जब ये वाटर बॉडीज में चला जाता है, वहाँ पे ये पोल्यूट उस वाटर बॉडी को भी करता है। तो ये इसका दूसरा इफेक्ट है। तीसरा, desertification. As you are aware about last time, मैंने आपको बताया था कि desertification basically it is the phenomena in which the fertile soil tracts, they are converted into the large non-fertile or infertile deserts. यहाँ पे जो soils होते हैं, soily tracts of the land होते हैं, वो convert होते हैं deserts में, and as a result of this the soil gets degraded. तो soil यहाँ पे बिल्कुल degrade होती है, and it loses its fertility, it loses its tendency to just cultivate the plants. यहाँ पे cultivation of the plants, then it becomes impossible in such type of deserts. तो यहाँ पे हम कहेंगे कि desertification, it is another cause which is caused by the soil pollution and hence causing the loss of the fertility of the soil. तो ये एक और इसका मतलब एक फैक्ट है। तो एक और इफेक्ट है एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स।
देखो, जब हम ज़्यादा जितना हम ज़्यादा मतलब जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं, जो मतलब इनकी एक्सेस यूज़ करने से क्या होता है कि वहाँ से मतलब इट कॉजेज़ द सैलिनिटी, it causes the salinity, increase the salt content of the soil, as well as it causes the acidity of the soil, it increase the acidic nature of the soil. जब ये चीज़ें सॉइल में बढ़ जाते हैं ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, उस तरह वहाँ पे जो सॉइल के अंदर जो बायोटा होता है दैट गेट्स किल्ड, दैट गेट्स डिस्ट्रॉयड, as well as the plant life also gets destroyed. This is another cause by of this soil pollution. तो इस तरह अगर हम एक और इफेक्ट की बात करेंगे, जो ये एक्सेसिव फर्टिलाइजर से एक और मतलब प्रॉब्लम होते हैं, जब हम ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं इन द सॉइल फॉर इंक्रीजिंग इट्स फर्टिलिटी, इन द मेन टाइम व्हाट हैपन्स कि जो एग्रीकल्चर रन ऑफ होता है ड्यूरिंग दैट टाइम, व्हाट हैपन्स जो इन फर्टिलाइजर्स के अंदर फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स होते हैं, दे फाइंड देयर पैसेज इनटू देयर नियर बाय वाटर बॉडीज। जब ये वाटर बॉडीज में चले जाते हैं, देयर दे कॉल द यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन, यू नो, that is the sort of syndrome of the lakes in which there occurs the nutrient enrichment, and the lakes में वहाँ पे एल्गल ग्रोथ ज़्यादा होते हैं जिसको हम एल्गल ब्लूम कहते हैं, and there occurs the hypoxia, that means there occurs the depletion of the oxygen content in the water as well. तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि ये soil pollution it also causes indirectly the eutrophication जब हम excessive use of fertilizers यहाँ पे करते हैं। तो इसी तरह एक और इफेक्ट इसका है कि जो रेडियो एक्टिव फॉल आउट होता है, रेडियो एक्टिव, देखो ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग एंड माइनिंग ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक द यूरेनियम, उस वक्त बहुत सारे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो होते हैं, they find their passage, they find their way, they find their entry into the food chains, and thereby they may lead to the several abnormalities in the various organisms at various trophic levels in these food chains. तो वहाँ पे बिल्कुल ही फिर इसको डिस्टर्ब करते हैं. This is another cause, this is another effect which is caused by the soil pollution. तो इस तरह एक और इफेक्ट इसकी है कि हाँ, किसी वक्त क्या होते हैं जो केमिकल्स होते हैं एंड जो केमिकल्स एंड द डिजेनरेटिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं, sometimes they get percolated into the soil, and they get deep penetrated in the soil and reaches up to the groundwater, and thereby they cause the contamination of the groundwater. तो ये भी इसका एक इम्पैक्ट है, soil pollution का इफेक्ट है. And these were few of the effects which are caused by this soil pollution. Now, how we can control this soil pollution? तो हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? कंट्रोल, देखो, several methods can be adopted or applied, can be used to somehow reduce the soil pollution or to control the soil pollution. तो जहाँ तक some of which are as under कुछ methods ऐसे है कि पहला एक है scientific disposal of wastes. साइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, उसमें हम पहले क्या करेंगे? रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट. देखो, scientifically we can dispose of the several solid waste, several waste which are polluting the soil. तो इनमें एक है रिसाइकलिंग ऑफ द वेस्ट. रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट लाइक पॉलीथीन जो होता है, प्लास्टिक होता है, वेयर्स होते हैं, जिस गिलास वेस्ट होते हैं, या इसी तरह हम कंपोस्ट इस्तेमाल करते हैं, काउडंग होता है, ये या कुछ वेस्ट वाटर होता है, इसको हम मतलब रिसाइकलिंग कर सकते हैं. इसको अगर हम रिसाइकलिंग करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, हमारी सॉइल बच सकती है कंटेमिनेशन से, इनकी कंटेमिनेशन से, यानी कि सॉइल
हमारी इट विल गेट मतलब यहाँ तो वी विल इससे हम चेक कर सकते हैं सॉइल पोल्यूशन को, अगर इनकी हम रिसाइकलिंग करेंगे इन वेस्ट सॉलिड्स की। तो दूसरा एक साइंटिफिक मेथड ये भी है कि लैंडफिल्स। देखो लैंडफिल्स इज अनदर साइंटिफिक दिस वे or scientific method by which we can dispose of this solid wastes। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो wastes हैं they are used to fill the lower levels of the land। तो इस तरह जो अनइवन लैंड होता है वहाँ पे हम सॉलिड्स को बिल्कुल बुरी करते हैं, वहाँ पे इन वेस्ट्स को हम डालते हैं। इस तरह वहाँ पे जो कि ग्राउंड की वहाँ इसकी लेवलिंग होती है, तो इस तरह वहाँ पे इस ऐसे भी हम इसको की डिस्पोज कर इसको इसकी डिस्पोज कर सक इसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरह एक और साइंटिफिक मेथड है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट they can be used in the बायोगैस प्लांट्स, अगर उनमें इस्तेमाल करेंगे in order to get from them the biogas, हम उनसे हासिल कर सकते हैं। बायोगैस is one of the cheaper fuel, and इस तरह we can also get these manures which are the cheaper manures, या जिसको हम कहते हैं ना मतलब बायो फर्टिलाइजर्स भी हम उनसे ऑब्टेन कर सकते हैं विच आर चीपर फर्टिलाइजर्स और चीपर मैन्यूर्स। तो इस प्रोसेस से हम ये कर सकते हैं ड्यू टू द बायोडिग्रेडेबल मतलब जिस वेस्ट से हम ये चीज़ें हासिल करें, हम बायोगैस भी उनसे या बायो फर्टिलाइजर्स यहाँ से हम इनको मैन्यूर्स भी कह सकते हैं, मैन्यूर्स भी हासिल कर सकते हैं। एक और दूसरा जो कि कंट्रोलिंग मेथड है वो ये है कि हाँ, तो किसी वक्त हम इसको ऐसे भी कंट्रोल कर सकते हैं कि जो मतलब पोल्यूटेड सॉइल होते हैं इसको हम एक्सकेवेट कर सकते हैं एंड सबसिक्वेंट ट्रांसपोर्टेशन टू सम अदर एरियाज विच आर रिमोट विच आर अनइनहेबिटेड एरियाज। तो किसी वक्त जो जो पोल्यूटेड सॉइल होते हैं इसको हम एक्सकेवेट करते हैं और फिर इसको हम ले जाते हैं उस जगह पे जो रिमोट होती है, जो अनइनहेबिटेड होती है, तो वहाँ पे भी इसको हम कैरी करके इससे हम इस सॉइल जो मतलब जो वेस्ट सॉइल होती है या पोल्यूटेड सॉइल होते हैं, इससे वहाँ पे सॉइल की पोल्यूशन जो है ना चेक होते हैं, सॉइल की कंटेमिनेशन मतलब उस कंटेमिनेशन से बच सकती है। तो एक और मेथड है तो हाँ, एक्सट्रैक्शन ऑफ pollutants through thermal remediation। हाँ, थर्मली भी हम इन मतलब जो ये सॉइल पोल्यूटेंट्स होते हैं इनको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लाइक देयर आर मैनी प्रोसेसेस विच आर इन्वॉल्वड इन दिस थर्मल रेमिडिएशन। इसमें हम कहते हैं इंसिनरेशन होते हैं एक प्रोसेस। इंसिनरेशन में क्या किया जाता है, जो कि वेस्ट है इनको हीट किया जाता है अप टू टेम्परेचर ऑफ अबाउट 900 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसी तरह पायरोलिसिस एक दूसरी थर्मल रेमिडिएशन प्रोसेस है। पायरोलिसिस में भी हम हीट अप करते हैं इस वेस्ट को अप टू द टेम्परेचर 1650 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन यहाँ पे हम इनएरोबिकली इसको हीट करते हैं पायरोलिसिस में, उसमें एरोबिकली हम करते हैं इंसिनरेशन में। तो बोथ इन दिस बोथ प्रोसेस व्हाट इज डन हियर द टेम्परेचर here the temperature of these wastes is raised to such levels that they turn into their vapor state, and these wastes in their vapor state or these pollutants in their vapor state are then extracted with the help of the extract collectors। तो उस तरह हम इनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये भी एक मतलब मेथड है जिससे हम इसको चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह एक और मेथड है जिसको हम कहते हैं बायो रिमेडिएशन। Bioremediation, it is another method in which the microorganisms are used just to डिकंटेमिनेट द सॉइल। यहाँ पे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हैं सॉइल की डिकंटेमिनेशन में, पोल्यूटेंट्स को मतलब दूर करने में। यहाँ हम
माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल, दिस इज वाई इट इज नोन एज द बायो रिमेडिएशन। इट इंक्लूड्स द फाइटो रिमेडिएशन। फाइटो रिमेडिएशन में क्या होता है, वहाँ पे प्लांट्स आर यूज टू डिकंटेमिनेट द सॉइल पोल्यूटेंट्स और टू डिकंटेमिनेट द सॉइल्स फ्रॉम द सॉइल पोल्यूटेंट्स। इस तरह एक और इसमें होता है माइक्रो रिमेडिएशन। माइक्रो रिमेडिएशन में हम फंजेस आर यूज टू टेक अवे द हेवी मेटल्स फ्रॉम द सॉइल वेस्ट। तो इस तरह हमारी सॉइल फिर इन पोल्यूशन से बच सकती है। दैट इज अनदर मेथड बाय विच कैन चेक or we can somehow reduce the soil pollution. And these were few of the ways, few of the methods by which we can check or reduce the soil pollution. तो इस तरह आज तो हमने बात की रिगार्डिंग द इसके मतलब जो इफेक्ट्स एंड द कंट्रोलिंग मेजर्स ऑफ द सॉइल पोल्यूशन। तो इंशाल्लाह इन द कमिंग टॉपिक्स वी विल प्रोसीड अहेड। टिल देन खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।